Are you ready? My dear students, today we discuss the history, modern history. In the modern history, we discuss about the Britishers. In the first chapter, we discuss what is history, what is the importance of history, and what is the features of history and different sources of modern history. Because in 8th class, we are discussing the modern history. In this chapter, we discuss about the Britishers, the intention of Britishers. What is the intention of Britishers to come India? Only for trade or to make the territory or expand their territory in India? क्या intentions थे Britishers को India आकर trade करने के लिए? So let's begin our class now. History chapter 2, class 8th, from trade to territory. We will learn or discuss this chapter with the help of this beautiful made presentation. Start with the introduction. We all know history is not a story of one night. It's not a dream, you just get up and think ki, oh, it's happened last night, oh, this has happened tonight. So it's not a history. It's a link between the stories. So let's begin how the Britishers easily came India, how they know about India, how they easily conquered India. So let's begin with the introduction. From the introduction we discuss कि in 1707 when the Mughal Empire declined. Now what is the reason behind Mughal Empire declining? Mughal Empire decline क्यों होने लगा? मुगल एम्पायर डिक्लाइन इसलिए होने लगा बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब की डेथ के बाद बिकॉज औरंगजेब या कोई भी एम्पायर डिक्लाइन क्यों होता है? जस्ट बिकॉज एक पावरफुल किंग उस जगह पर नहीं होता है, उस एरिया को या उसकी टेरिटरी को वो कॉन्क्वायर करके बांध कर नहीं रख पाता. तो कोई भी एम्पायर डिक्लाइन होने का कारण यही होता है कि कोई भी पावरफुल किंग वहाँ ना रहे. तो मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर तो नहीं बट लास्ट पावरफुल रूलर थे औरंगजेब, जो 1707 में जिनकी डेथ हो गई. सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल एम्पायर डिक्लाइनिंग एंड इंडिया में कोई भी नेवल सुपर पावर नहीं थी. Then second battle, Marathas also rise up at that time, but in the third battle of Panipat in 1761, Marathas also crushed by Ahmad Shah Abdali. So in India there was a time where no unity in India, no powerful kingdom in India. So ये वो समय था. Let's see the next. Okay, let's discuss how Europeans know about India, how Europeans country know about India, because if we see that European country is far away, at that time no plane system was there, no airways was there, so how they know about the India? Randomly Vasco da Gama in 1498 discovered the sea route of India. He came from the Cape of Good Hope and just entered Calicut, Calcutta first in India and started Portuguese. Vasco da Gama was a Portuguese traveler. He started the base camp in Goa. उन्होंने अपना पहला बेस कैंप गोवा में स्टार्ट किया था. कालीकत या कलकत्ता में वो उतरे थे और जब वो इंडिया आए, when they entered India, they just saw the beauty of India, geographical location of India, that we are having sea, oceans, we are having that different rivers, agriculture, proper agriculture system, we are having minerals, lot of goals, we are having different type of agriculture we are doing, and we are a phosphorus country. ये देखा यूरोपियन ट्रैवलर जो एक पोर्तुगीज ट्रैवलर था वास्को डी गामा. वास्को डी गामा जब वापस यूरोप गए तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में हमें ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए, इंडिया के साथ ट्रेड करने से हमको बहुत बेनिफिट्स होंगे. सो स्लोली दूसरे कंट्रीज़ ने भी उनका पीछा किया और पता किया कि कहाँ से ये ट्रेड शुरू हुई है. सबको यूरोपियन कंट्रीज़ को स्लोली इंडिया के बारे में पता चला. उस टाइम पे यूरोप में भी एक बहुत ही सुपर पावर थी इंग्लैंड या ब्रिटिशर्स उस टाइम पे यूरोप में भी सुपर पावर थी. उन्होंने भी इंडिया में बिजनेस या ट्रेड स्टार्ट करने के लिए कोशिश की. सो इन
all the European countries now know about, mostly European countries know about the India after Portuguese discovered the sea route of India. The Portugal, Holland, English, France, Denmark, Spanish, Dutch, all were anxious, very excited to do trade with India. So now English were the superior at the time. For in Europe countries also English तब भी superior थे. तो इंग्लिश को ये था कि दे ओनली वांट टू ट्रेड विद इंडिया, वो सिर्फ अकेले इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे. तो जो भी उनके बीच में आ रहा था वो उनका एनिमी था और वो उसको अपने रास्ते से हटा रहे थे. तो इन 1598 इंग्लिश डिफीटेड स्पेनिश. सबसे पहले इंग्लिश ने स्पेनिश को अपने रास्ते से हटाया. लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट स्लाइड. सो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, वो सिर्फ इंडिया में ट्रेड करने आए थे. फिर ऐसा क्या हुआ, दे स्टार्टेड making territory or annexing different territories of India. So Europeans in India know about the Indian prosperity. So in 1600 Queen Elizabeth II, in 1600 Queen Elizabeth II, as you can see the picture of Queen Elizabeth looking like a doll, she granted, उन्होंने ग्रांट किया सिर्फ इंग्लैंड की एक लौती कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि सिर्फ आप ही जाएंगे इंडिया में सोल ट्रेडिंग करने, हमारी कंट्री से कोई भी आपको कंपटीशन नहीं होगा. बट रॉयल चार्टर्स जो थे वो सारे कंट्रीज़ को नहीं रोक सकते थे. अपनी कंट्री से आप सिर्फ एक कंपनी को भेज सकते हो, लेकिन सारे कंट्रीज़ की कंपनीज़ को वहाँ पे ट्रेड करने के लिए नहीं रोक सकते. सो क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दी कि आप जाइए और सोल ट्रेड कीजिए इन 1600. देन व्हाट इज़ द एम ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी? ट्रेडिंग कंपनी का एम था टू बाय द गुड्स एट चीप प्राइस एंड सेल इट इनटू द हायर प्राइस. सस्ते में खरीदे और महंगे में इसको बेचे. अब नेवल पावर भी जिसके पास उस टाइम सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग अच्छे से करेगा, ट्रेडिंग में सबसे आगे होगा, क्योंकि इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है. कोई एयरवे नहीं है, कोई रेलवे सिस्टम नहीं है जो यूरोप कंट्रीज तक जाता हो. तो उनके पास मेन एक पॉइंट था नेवल पावर. तो सुप्रीम नेवल पावर थी सबसे ज़्यादा इंग्लिश के पास. तो ये भी एक बेनिफिट पॉइंट था इंग्लिश के लिए अपने ट्रेड को और आगे बढ़ाने का. सो दिस इज़ हाउ दे स्टार्टिंग ट्रेडिंग विद इंडिया कि क्वीन एलिजाबेथ ग्रांट द सोल ट्रेडिंग permission to East India Company to trade with India. Now the English East India Company के एक किंग जेम्स वन, आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ किंग जेम्स वन grant the permission or sent the ambassador. Ambassador means representative of another country. Hawkins sent the representative Hawkins to the Jahangir court to give the permission to start factory in Surat. सो इन 1609 में हॉकिंस नाम के एक एम्बेसडर आए. किसके द्वारा भेजे गए वो एम्बेसडर या राजदूत किसके द्वारा भेजे गए? किंग जेम्स वन सेंट द एम्बेसडर हॉकिंस टू द जहांगीर कोर्ट्स फॉर टू गेट द परमिशन, लेने के लिए कि हम सूरत में एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं. बट ड्यू टू इंट्रोड्यूस ऑफ पोर्तुगीज जहांगीर विथड्रॉ दैट फरमान. अब जहांगीर से ही परमिशन क्यों ले रहे हैं? वाई दे आर टेकिंग परमिशन टू जहांगीर ओनली? बिकॉज मुगल एम्पायर के उस टाइम पे जहांगीर ही थे जो राज कर रहे थे, सुल्तान या एम्परर थे. सो जहांगीर ने बहुत ही मुश्किल नूरजहाँ के कहने पर परमिशन दी थी, फरमान जारी किया था हॉकिंस को कि आप ट्रेड कर सकते हैं सूरत में. बट पोर्तुगीज़ ने कहा फ्रॉम 1498 वी डिस्कवर द सी रूट, हम यहाँ पे पहले आए, इतने आसानी से आप इनको ट्रेडिंग के लिए परमिशन फैक्ट्री के लिए कैसे दे सकते हैं? तो जहांगीर विड्रॉ दैट फरमान, जहांगीर ने वो फरमान विड्रॉ कर लिया. नाउ सेकेंड एनिमी कौन बन गए इंग्लिश के लिए? नाउ द सेकेंड एनिमी वॉज Portuguese. So in 1612 the English defeated Portuguese. तो जो जो रास्ते में आता जाएगा उसे हम हटाते जाएंगे, because English का एम था first their aim is trading with India and expand their trading for to do whatever they want to do, just they want to do. Okay. सो फरमान जारी किया जहांगीर ने, ऑल यू नो. उसके बाद जब 1612 में उन्होंने उन्हें हरा दिया तो अगेन फरमान जारी हुआ. जहांगीर ने फिर से उन्हें जहांगीर से परमिशन ले ली और सूरत में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी.
Now how Britishers increase their trade? अब slowly they just started increasing their trade. We all know कि उन्होंने स्पेनिश को 1598 में डिफीट कर दिया, 1612 में they defeated Portuguese, and then नेक्स्ट एम्बेसडर सर थॉमस रॉ ये भी आए और दे टेक द परमिशन टू ओपन द फैक्ट्री इन आगरा, अहमदाबाद, बरोच इन 1615. मतलब 1615 तक इनके पास इतने एरियाज हो गए थे वेयर दे स्टार्ट ट्रेडिंग, मेकिंग फैक्ट्रीज. यहाँ पे ये लोग फैक्ट्री बनाना स्टार्ट कर दिया था फॉर देयर टेरिटरी. हियर दे स्टार्टेड देयर फैक्ट्री फॉर ट्रेडिंग. Now English also start establishing the different cities. अब English जो थे वो अलग अलग cities भी establish कर रहे थे. उन्होंने मद्रास सिटी को establish किया. In 1639 they established the Madras city. How they established the Madras city? How they get the land? They get the land from Raja Chandragiri. राजा चंद्रगिरी से उनको वो लैंड मिला और उस लैंड पे उन्होंने बनाया सिटी ऑफ मद्रास. और सिटी ऑफ मद्रास पे उन्होंने एक बहुत ही फेमस फोर्ट भी बनाया, सेंट जॉर्ज फोर्ट. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सेंट जॉर्ज फोर्ट. सो नाउ लेट्स स्टार्टिंग कि 1600 क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें परमिशन दी. देन अगेन 1609 किंग जेम्स वन ने एम्बेसडर भेजकर फरमान जारी करवाया, पोर्तुगीज़ को हराया, एंड दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इन सूरत ऑल्सो. एंड सर थॉमस रॉ ने परमिशन ले ली आगरा, अहमदाबाद, बरोच में. मद्रास में भी इनका कॉन्क्वायर हुआ. मद्रास में भी इन्होंने ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट की, मद्रास सिटी इस्टेब्लिश की. वहाँ पे इन्होंने अपना फोर्ट बनाया. फोर्टाइजेशन, अगर कोई कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग करने आई है तो व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू मेक फोर्ट? क्या ज़रूरत थी फोर्ट बनाने की? बट ये फोर्टाइजेशन भी कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें पता था कि we have to expand our trading. For to expand our trading and all, fortification भी बहुत important होगा. So now they started trading with बंगाल also. बंगाल सारे ऐसे एरियाज जो सी समंदर के पास थे, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, अरेबियन सी के पास में थे, वो सारे ऐसे स्टेट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वहाँ से वो पोर्ट बना के ईजिली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे यूरोप या डिफरेंट कंट्रीज में. So next slide, permission from England. Now another permission. This is always English जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी come under the Britishers के अंदर आती थी जो इंग्लैंड में थे. वो हमेशा उनको परमिशन देते थे, उसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी कदम उठाती थी. तो किंग चार्ल्स टू ऑल्सो गिव द परमिशन टू द कंपनी टू इशू कॉइन्स. उन्होंने कहा कि आप अपने कॉइन्स भी इशू कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि यू कैन ऑल्सो बिल्ड द फोर्ट, आप वहाँ पे फोर्ट भी बना सकते हैं. उन्होंने कहा कि यू कैन डू द वॉर और पीस अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस. आप सर्कमस्टेंसेस से अकॉर्डिंग लड़ाई झगड़ा और शांति भी बनाए रख सकते हैं. आप अपनी आर्मी भी क्रिएट कर सकते हैं. जस्ट अंडरस्टैंड द इंटेंशन. जब आप ट्रेड करने आए आपको फोर्टाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कॉइन इशू करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आर्मी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो ट्रेडिंग में किसी काम की नहीं. बट उनके इंटेंशंस slowly gradually their intentions changed and they just think to annex the territories. So for this they start making army, they just start to war against the Indian territories, build fort, coins and etc. So in 1688 King Charles II also handed the Bombay Island to company. Bombay Island, how the King Charles get the Bombay Island? King Charles to get the Bombay Island because Bombay Island was come under the Portuguese, and when King Charles II married with the Portuguese princess, he get that island. और फिर 1688 में वही सेम आइलैंड किंग चार्ल्स II ने किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया. मीन्स ईजी है. पोर्तुगीज़ सबसे पहले आए, बम्बई आइलैंड भी पोर्तुगीज़ के अंदर था, बट पोर्तुगीज़ की प्रिंसेस से जब किंग चार्ल्स II ने शादी करी तो पोर्तुगीज़ ने वो आइलैंड किंग चार्ल्स II को दे दिया. और किंग चार्ल्स II ने वही सेम आइलैंड, मीन्स आइलैंड हमारा और घूम वो दूसरी कंट्री का रख के दे आर गिफ्टेड टू ईच अदर. तो बॉम्बे आइलैंड उन्होंने कंपनी को दे दिया 1688 में कि आप इस पे भी पोर्ट बना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं. इन 1691 में उन्होंने अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी पे भी अजम्पशंस लगवा लिए कि नहीं, वी
वी डेंट पे, हम ना आपको पे नहीं करेंगे। पहले ये स्टार्टिंग में पे कर रहे थे बट स्लोली इन्होंने मना कर दिया। तो मोस्ट मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम दे आर पेइंग 3000 सम कस्टम ड्यूटी फॉर ईयर, एक साल के लिए वो सिर्फ 3000 रुपीज़ ही पे कर रहे थे। नाउ इन 1698 इन्होंने कुछ और भी डेवलप किया। द डेवलप या कन्वर्ट द 3 विलेजेस इनटू सिटी ऑफ बंगाल। बंगाल के 3 विलेजेस को इन्होंने एक सिटी में कन्वर्ट किया जिसका इन्होंने नाम दिया कलकत्ता, विच इज़ करेंटली द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। सो ये कुछ परमिशंस थी जो लेने के बाद स्लोली आप समझ ही रहे होंगे कैसे धीरे धीरे इंडिया को कैप्चर किया जा रहा है। नाउ राइवलरी अमंग्स द डिफरेंट कंपनीज इन इंडिया। अब ऐसा क्या था जो सब यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के लिए ही लड़ रही थी। ऑल दे वांट टू ट्रेड विद इंडिया ओनली। ऐसा क्या था कि सबको इंडिया में ट्रेड करना था, सबको एक दूसरे से लड़ाई करनी थी, and all they wanted to trade with India because they all are interested to buy the same kind of goods from India, because they want to buy and they interested to buy black pepper, cardamom, clove, cinnamon, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची एंड देन लौंग। ये सब जो गरम मसाले थे इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि ईजीली इनका एग्रीकल्चर उनके यूरोप कंट्रीज़ में नहीं था और इतने चीप प्राइस में उनको जो इंडिया से मिल रहा था एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट करने के लिए अपने पास, तब भी वो इतना चीप प्राइस में वो वहाँ पे एग्रीकल्चर में नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई ऑल आर इंटरेस्टेड टू डू ट्रेड, परचेज द सेम थिंग। सबको ये सारी यूरोपियन कंट्री को यही सब सेम चीज़ें खरीदनी थी। अब दिक्कत ये आने लगी कि जब सबको सेम चीज़ खरीदनी है देन व्हेन डिमांड इज़ हाई द प्राइसेस, जब डिमांड हाई होगी तो प्राइसेस और चीज़ें कम तो प्राइस तो बढ़ेंगे ही, तो प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए। प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी इनको लॉस होने लगा, उनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो नाउ दे जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर हमें ज़्यादा से वी वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, सो वी हैव टू रिमूव अवर राइवल्स। अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाओ जो इंग्लिश स्टार्टिंग से ही कर रहे थे, स्पेनिश, पोर्तुगीज, लाइक दिस। सो दे जस्ट स्टार्टिंग राइवलरीज को हटाना उन्होंने शुरू कर दिया। व्हाट दे आर डूइंग, दे जस्ट सैंक ईच अदर शिप, एक दूसरे की शिप्स को डुबाना, आग लगा देना, जस्ट फाइट विद ईच अदर, ब्लॉक ईच अदर शिप, एक दूसरे की शिप को ब्लॉक कर देना, डुबा देना, जला देना, ये सब वो करने लगे। सो इंग्लिश इन सब में से आगे बढ़ गए, सारे यूरोपियन कंट्री से टॉप में आ गए क्योंकि इन्होंने सबके साथ अच्छे से फाइट कर ली। स्पेनिश, पोर्तुगीज़, फ्रेंच, डच, सबके साथ इनका आपस में फाइट हुआ एंड टॉप पे आ गए अब इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। दे जस्ट नाउ स्टार्टेड प्रॉपरली एंड रिलैक्सिंगली, दे जस्ट स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इंडिया। ओके, नाउ अगर आपको वो मिल जाता है जो आपको चाहिए तो आप उसके बाद भी शांत नहीं बैठते। जैसे कि ब्रिटिशर्स थे, ट्रेडिंग करना चाहते थे और ट्रेडिंग हो भी रही थी, बट अब उनका ये था कि इंडिया में कोई भी अभी कोई सुपर पावर नहीं है, कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो पूरे इंडिया पे रूल कर रहा हो। और इंडिया के लोग भी बहुत भोले हैं, आसानी से इनकी बातों में भी आ जाते हैं, तो क्यों ना ये छोटी छोटी टेरिटरीज के साथ लड़ाई करके, फाइट करके हम इनकी टेरिटरी को भी जीत लें और फिर ट्रेडिंग के लिए जो उनको पैसा देना पड़ रहा है, ज़मीन के लिए जो रेंट देना पड़ रहा है, फैक्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, ये कुछ भी देना नहीं पड़ेगा अगर हम, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, कोई डिक्टेटरशिप नहीं थी। इंडिया में होता था कि जिस एरिया का जो भी किंग है वो उस एरिया को डिफरेंट प्रोविंसेस में इंडिया बटा था, तो कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि इंडिया को कोई बैठकर सिर्फ एक राजा चला रहा हो। तो उनका ये था कि बंगाल से जाकर बंगाल से फाइट कर लो, पंजाब जाकर पंजाब के किंग से फाइट कर लो, महाराष्ट्र जाकर मराठा किंग से फाइट कर लो। ऐसे करके इनका मेन एम था कि ऐसे फाइट करते जाओ, वो एरिया जीतते जाओ और दैट्स अनेक्स दैट एरिया। सो फर्स्ट important battle that fought by Britishers was Battle of Plassey in 1757. 1757 Battle of Plassey was the very important battle
वर्सेस ब्रिटिशर्स वर्सेस सिराजुद्दौला, बंगाल नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उनके बीच और ब्रिटिशर्स के बीच हुई बैटल ऑफ प्लासी. Battle of Plassey fought near the bank of Bhagirathi, which is about 150 kilometer away from Bengal. Now, capital of at the time of Bengal was Murshidabad. It's बाय सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला ने इसको कैपिटल बनाया था मुर्शिदाबाद को. एंड सन ऑफ अलीवर्दी खान वॉज सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला अलीवर्दी के खान के बेटे थे और इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के, बट ब्रिटिशर्स ने उनको इस बैटल में हरा दिया. ब्रिटिशर्स डिफीटेड बंगाल नवाब इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एंड अनेक्स द बंगाल. अब बंगाल पूरा उनके हाथ में आ चुका था. उस समय वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल नहीं था, पूरा बंगाल का जो एरिया है वो पूरा का पूरा दैट कम अंडर द हैंड ऑफ द कंपनी के अंदर इसका पूरा बंगाल का पावर आ गया था. यू कैन सी इन द पिक्चर. हमारी आर्मी ज़्यादा होने के बाद भी हम ब्रिटिशर्स सिराजुद्दौला मीन्स ब्रिटिशर्स से हार गए. क्यों? क्योंकि उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, उनके पास एक टेक्निक्स थी कि उनको पता था कि किस तरीके से इनको हराया जाए. तो फर्स्ट बैटल जीतने के बाद उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर हम ये बैटल जीत सकते हैं तो हम इस तरीके से पूरे इंडिया को कैप्चर कर सकते हैं. कितना आसान है एक कंट्री को स्लेव बनाना और ट्रेड के स्टार्टिंग ट्रेड से करना और फिर धीरे धीरे अपनी ट्रेड टेरिटरी बढ़ाना. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ बक्सर. बक्सर इज इन बिहार. बक्सर बिहार में है. दिस बैटल ऑफ बक्सर इज फॉट इन 1764 बिटवीन. अब यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स वर्सेस कोई एक राजा नहीं है, यहाँ है ब्रिटिशर्स वर्सेस मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल. बंगाल के जो नवाब हैं वो भी हैं, क्योंकि एक बार हारने के बाद ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई और नवाब नहीं होते थे, वहाँ पे और सेकेंड नवाब भी होते थे, क्योंकि ये लोग उन्हें मारते नहीं थे. ये जस्ट थिंक कि आपको नवाबशिप मेंटेन करनी है, आप मेंटेन करके रहिए, आप रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट करके और जो हम ऑर्डर दे रहे हैं आपको वो मानना पड़ेंगे. तो इन्होंने क्या किया, रिवर गंगेज के पास इन्होंने फाइट किया बैटल ऑफ बक्सर. किस किस के बीच? ब्रिटिशर्स वर्सेस मीर कासिम बंगाल नवाब, सुजाउद्दौला अवध नवाब. सुजाउद्दौला एंड सिराजुद्दौला डिफरेंट. सिराजुद्दौला इज बैटल ऑफ Plassey and Sujaud-Dawla is the Nawab of Awadh, Battle of Buxar. And Shah Alam to a Mughal Empire. 3 kings या 3 emperor versus Britishers fight हुई थी. इस fight में तो हमें जीत जाना चाहिए था, but we lost this battle also. Battle of Buxar also lost by the Bengal, Awadh and Mughal emperor with Britishers. Britishers defeated, but after defeating in the Battle of Buxar, they just defeated them, but they didn't kill them. जैसा मैंने आपको बताया वो उन्हें मारते नहीं थे. They just give an offer कि ओके लेट्स मेक अ ट्रीटी. एक संधि करते हैं. ट्रीटी मीन्स संधि. संधि में ये कि जो भी उन्होंने लिखा हो कि इस तरीके से होगा, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन दैट्स कम अंडर द ट्रीटी. तो उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करी. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन बाय द लॉर्ड क्लाइव ने उस पर साइन किया और उस ट्रीटी में लिखा था कि यू वांट टू मेंटेन योर नवाबशिप. इफ यू वांट टू मेंटेन योर नवाबशिप ऑफ दैट एरिया, ओके सो मेक दैट नवाबशिप, बट वी वांट 30 लाख पर ईयर. हमें 30 लाख रुपए सालाना रेवेन्यू चाहिए उस एरिया से. सो पर्टिकुलर एरिया से ये लोग 30 लाख रुपए रेवेन्यू लेते थे उन राजाओं से हर साल. उन्हें नहीं पता वो रेवेन्यू कलेक्शन प्रॉपरली हो भी रहा है या नहीं, वहाँ फैमाइन है, वहाँ पे एग्रीकल्चर हो भी रहा है या नहीं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं. उनको 30 लाख रुपीज़ अपनी नवाबशिप मेंटेन करने के लिए ब्रिटिशर्स को देना ही पड़ते थे.